IIC, and that has been funded by Ministry of Education, Innovation Cell, MIC, and AICTE. Today we have two lectures, one by Mr. Vivek Mishra on how to become an entrepreneur, challenges and various passive income options in session 1, and second by Professor A.C. Kulbe, Chief Scientist at CSIR IITR on innovation and IPR. The purpose behind the organization of this lecture series is to nurture the confidence among the girls and to develop a culture of innovation in the college campus. That has been motive of this innovation council, and so that we can make a brighter, a better and a more beautiful world for coming generation. That is the motive behind this innovation cell. So going further, I would like to request our senior colleague ma'am, Rashmi ma'am, to welcome our distinguished speakers, Mr. Vivek Mishra and Manisha Mishra with bouquet. Presently, Mr. Vivek Mishra presently holds this position of Sapphire Director at Oriflame Cosmetics. He has earned this position with hard work, dedication and sense of brightening the future for the coming generation. Thank you so much for coming here. So, I request ma'am. And Mrs. Manisha Mishra, she has been strength to him for everywhere, and Momentum as well. Now I would request to Dr. Poonam Verma to welcome our senior guest, senior colleague, Mr. Ma'am. And now I would like to invite ma'am, Rashmi ma'am, to convey the welcome note to our speakers. Please. Okay. Respected dais and my colleagues and their students. Actually, I was not knowing about this event, and I was not knowing that I have to deliver any blessings, but I really welcome you, both of you, for your valuable time you dedicated for our college, and best wishes for the journey. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Actually, it was my mistake क्योंकि मैम को मैंने just अभी बताया है कि मैम को यहाँ आना है और just मैंने अभी बताया है. Now I would like to invite Poonam ma'am for convey the idea behind this concept, this impact lecture as well as IIC. Thank you, sir. Today we are organizing Impact Lecture session under Institutions Innovation Council. Actually, Institution Innovation Council (IIC) is an initiative of
MHRD for selected higher education institutes. MHRD, Government of India, has established MHRD's Innovation Cell, that is known as MIC, or Ministry of Education's Innovation Cell, is systematically foster the culture of innovation amongst all higher education institutions. Under this IIC scheme, there is a great initiative, Impact Lecture Series, that is organized by or systematically initiated by MIC to organize session, thereby creating awareness and skills in innovation, entrepreneurship and intellectual property rights amongst faculty and students in IIC institutions in various regions across the country as per NITI Aayog. It is a matter of great pleasure that under this Impact Lecture Series, we have received granting act by MIC. और यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, थोड़ा सा इनको ये शब्द सुनने में अलग लग रहे होंगे कि इम्पैक्ट लेक्चर सीरीज IIC, राइट। तो ये क्या है? इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल। जैसे आप जानते हैं कि एक ट्रेंड चला आ रहा है कि हमें गवर्नमेंट जॉब में जाना है, बच्चे मेंटली प्रिपेयर होते आते हैं कि हाँ हमें बड़े होकर जॉब में जाना है, गवर्नमेंट जॉब के लिए हमें ये प्रिपेयर करना है, दिस एंड दिस, मतलब हमारा पूरा माइंडसेट उसी में रहता है। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स की पोजीशन क्या हो रही है कि पहले यहाँ से अब बिल्कुल ही डाउन है। और अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की कंडीशन देखें, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की देखें, तो पहले जो एक माइंडसेट था कि हम बहुत आराम की जॉब कर रहे हैं, हम बहुत आराम से रहेंगे, बहुत रिलैक्स मोड में रहेंगे, वो अब चेंज हो गया। अब आप प्राइवेट सेक्टर में जितनी मेहनत करते हैं, सेम आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी उतनी ही मेहनत करनी होगी। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, टैलेंट है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो कैसे इस गैप को ब्रिज किया जाए? इसी के लिए इस तरह की शुरुआत की गई, जिसे आप इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आगे, क्योंकि उनको ये जस्ट आगे चल के अपने फ्यूचर को शेप करना है। अब अगर गवर्नमेंट जॉब के पीछे आप लगे रहे, अल्टीमेटली आप वहाँ नहीं पहुँच पाए, तो क्या करते हैं? और स्पेशली गर्ल्स क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। आफ्टर मैरिज बस क्या करेंगे? रोटियाँ पकाएंगे, फिर सोचेंगे हमने पढ़ लिख के इतना क्या कर लिया, हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ऐसी है गवर्नमेंट, वैसी है गवर्नमेंट, यही बोलेंगे ना। घर वाले बोलेंगे थोड़ा अच्छे से पढ़ लिया होता तो नहीं लग गई होती। गलत बात बोली मैंने? घर वाले यही बोलेंगे ना कि तुम ही ना ठीक से नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए नहीं। तो टैलेंट है आपके पास, अपॉर्चुनिटीज आप नहीं समझ पा रहे, तो अपॉर्चुनिटीज केवल गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है, आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके अंदर हर एक पर्सन में कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव आइडिया होता है, कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो दूसरे में नहीं होती हैं, आपको डिफर करती है उससे। आपको अपने अंदर की वो क्वालिटी पहचाननी है, आपको अंदर की वो इनोवेटिव आइडियाज बाहर लाने हैं और उससे आपको अपने फ्यूचर को शेप करना है। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ IIC इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप जाने कि आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप डिफर हैं, आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, सेंस है, और आप उसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एक इम्पैक्ट लेक्चर सीरीज चालू की गई। उस सीरीज का ये मतलब था कि जो रिनाउंड पर्सन्स हैं अलग अलग फील्ड में, स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप में, स्टार्टअप में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, क्योंकि जब हम इनोवेटिव आइडियाज़ की बात करते हैं देन यू नो अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो वो सारी चीज़ें आपको रिनाउंड पर्सन और एक्सपर्ट के थ्रू आपको मालूम हो, आपको उनके गाइडेंस में पता चले कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये आपका बेसिक आइडिया है इम्पैक्ट लेक्चर सीरीज का, इम्पैक्ट लेक्चर सेशन का, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कह सकते हैं MIC, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन काउंसिल और AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इन्होंने फंड किया है। हमें ये ग्रांट मिली है, जिसके लिए आज ही हम इम्पैक्ट लेक्चर सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें सर ने जैसा बताया कि 2 सेशन होंगे। बहुत नॉलेजेबल होगी इस सेशन में, आप पूरी तरह से उसको ग्रैस्प करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। कहीं डाउट लगता है तो आप उसमें क्वेश्चन जरूर करिए। थैंक यू।
Thank you so much, ma'am. Obviously, when we talk about this IIC, then we have to know about innovation, we have to know about IPR, we have to know about different skill development schemes run by Government of India, Government of State Government. So that is why these programs are being organized. And now it's time to invite our distinguished speaker, Mr. Vivek Mishra, to deliver his talk about entrepreneurship and various ways to get other options to earn livelihood and money. Welcome. आप लोगों को ये नहीं दिख रहा होगा, हाँ? तो थोड़ा सा सीटिंग अरेंजमेंट चाहे तो इस तरह कर लीजिए कि थोड़ा आप लोग जैसे इस तरह मुँह करके बैठे ना, थोड़ा स्ट्रेट करके बैठिए ताकि इधर वाले लोगों को भी दिखे। थोड़ा सा मुँह बहुत जगह है पीछे उस साइड में। चेयर्स को ना इस तरफ के डायरेक्शन में ले आओ, घुमा लो पीछे। इधर एक घुमा लो ऐसे। कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है, रोकना होगा। एक्सपेक्टेशन है आपकी, काफी कुछ तो बताया सर ने कि क्या कुछ बताया जाएगा, बट आप जब आज यहाँ आए तो उससे पहले कुछ माइंड में था कि आज क्या बताया जाएगा, क्या कुछ नया सीखने को मिलेगा? कुछ नया सीखना चाहते हैं? यस। तो मुझे एक बार जरा बताएंगे कि आप लोग किस किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं? आप लोग मोस्टली क्या background है? तो मैम ने बताया कि पीजी के स्टूडेंट्स हैं मोस्टली यहाँ पे। तो पीजी किसमें कर रहे हैं? साइंस है और इकोनॉमिक्स भी है, हाँ जी, एंशिएंट हिस्ट्री भी है। गुड। सो ये जो भी आप एजुकेशन कर रहे हैं किस पर्पस से कर रहे हैं? अर्निंग्स के लिए सर। हाँ, पर्पस क्या है करने का? क्यों कर रहे हैं पढ़ाई? अर्निंग्स के लिए सर। हाँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए। और वो कैसे होगा? जॉब से जॉब से ही होगा, कंफर्म। और जॉब नहीं मिली तो मुझे पैसा नहीं होगा, फिर तो फाइनल प्लेसमेंट होना है ना, शादी हो जाएगी। मोस्टली गर्ल्स है, कुछ नहीं हुआ तो शादी कर लेंगे किसी अच्छे लड़के से पकड़ के, बॉयज के भी वही है ना? अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो गड़बड़ है, हाँ? क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखो तो 50% के आसपास भारत में जो पॉपुलेशन है वो गर्ल्स की है कि नहीं? और अगर ये सारी गर्ल्स ये सोचते हैं कि हमें अच्छी शादी कर लेनी है अच्छे लड़के के साथ, जिंदगी सेटल हो जाएगी, तो बहुत साफ गड़बड़ रास्ते पे निकल पड़ेगा। हाँ, बहुत बार हम लोग देखते हैं कि घर में कुछ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती है, मे बी हस्बैंड की जॉब चली गई या उनका बिजनेस अच्छे से नहीं चला, और अगर जो पीछे बैकबोन है, अगर वो जो हाउसवाइफ है या जो भी घर की सेकंड पार्टनर है, अगर वो सशक्त नहीं है तो बात कहीं ना कहीं डगमगा जाएगी। और ऐसा मैंने बहुत बार देखा है अपने जान पहचान में होते हुए। मेरे घर के बिल्कुल पड़ोस में एक आंटी रहती हैं, अंकल बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, शाम को मैं लौट के आया 9 बजे, मुलाकात भी हुई बाहर उनसे, 1 घंटे बाद चीख पुकार हुई, खत्म। और उसके बाद से लाइफ बिल्कुल यू टर्न। जो घर बहुत बढ़िया चल रहा था, बच्चा CMS में पढ़ रहा था, आज खाने के वांदे हैं, राइट? तो खुद से अर्निंग होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए भी ज़रूरी है, आपके पास ना पैसा गड्डियों में भरा हो, आप उसके ऊपर सो रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी खुद से कमाना ज़रूरी है। क्यों? बताओ क्यों? बहुत अच्छे घर, संपन्न घर में आपकी शादी होगी, बिल्कुल पैसा भरा हुआ है, इफराद है, जो गहना चाहो ले सकते हो, जो गाड़ी चाहो खरीद सकते हो, जहाँ घूमना चाहो जा सकते हो। फिर भी क्यों काम करना चाहिए खुद से? हाँ, सॉरी, कम आगे? दूसरे से मांगना पड़ेगा। और सेल्फ रिस्पेक्ट, हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, ओके, और इंडिपेंडेंस मिलती है। और सोचो, आपके घर में कितने लोग हैं, आप में से कितने लोग ऐसे जिनके घर में उनकी माताएं काम करती हैं, कुछ भी काम करती हैं, मे बी बिजनेस करती हैं, जॉब करती हैं? कोई भी नहीं? आपकी? ओके। सो आपको क्या अलग लगता है बाकी मदर्स में और आपकी मदर में? वो अपने
अपना इंडिपेंडेंट होकर अपना पैसा खुद खर्च कर सकती हैं। तो अपना पैसा खुद खर्च कर सकती हैं और अगर प्रॉब्लम्स पड़ती है तो वो अपनी तरफ से पैसा दे सकती हैं एज अ फादर को, कि वो Okay. एज अ उनके फाइनेंशियल हेल्प कर सकेंगी। ओके फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चों को हमेशा पेरेंट्स पे डिपेंड रहना, मतलब फादर पे डिपेंड रहना पड़ता है कि आपको पैसा फादर देंगे। राइट तो एज अ मदर्स पे भी लोग को हेल्प कर सकती हैं कि आपको बच्चों से, मतलब बच्चों को भी पैसा दे सकें। और आई थिंक थैंक यू। क्या नाम आपका? हाँ कोमल। तो कोमल के लिए क्लैप करते हैं। बिल्कुल इन्होंने सही बात बोली। सबसे बड़ी चीज जो आपको मिलती है ना, पैसा वैसा तो सब मिलेगा आपको, आप घर में कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे, लेकिन आपको डिसीजन मेकिंग की पावर मिल जाती है। जब कभी भी घर में कोई बड़ा डिसीजन होगा ना, छोटा डिसीजन होगा ना, आपको इन्वॉल्व किया जाएगा। जब तक आप घर में पैसा कमा के नहीं लाते हो ना, आपकी कोई कदर नहीं होती है। और जिस दिन आप 10,000 रुपये में महीना आने लग जाते हो ना, कुछ भी घर के काम होंगे ना, तो घर वाले आपसे डिस्कस करके चीजों को करना शुरू करेंगे, बिकॉज वो पैसे आप लेकर के आ रहे हैं। राइट। सो अपनी पहचान, जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की हम बात करते हैं ना, वो आपको तभी मिलती है जब आप घर में 2 पैसे लेकर के आते हो। ठीक है। सो जॉब करो, कोई बुराई नहीं है, ठीक है, उसका पर्पस जरूर समझो। ठीक है। और अगर जॉब नहीं मिल रही तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं। हमेशा हम ऐसे ये मांगने वाले क्यों बने? बड़ा कौन होता है, मांगने वाला या देने वाला? देने वाला ना। सो क्यों ना हम ऐसा बने जहां पे हम लोगों को रोजगार दें, लोगों को हम अपॉर्चुनिटी दें, उनको कमाने के मौके दें। आज भी इस इलेक्शन में भी अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है हर जगह, क्या? बेरोजगारी। और ये तब भी था जब देश आजाद हुआ था, और आज 70-75 साल बाद भी ये मुद्दा है। राइट। और अगर हमें डेवलप्ड नेशन बनना है, अगर हमें विकसित देश बनना है, विकासशील से विकसित देश में आना है, तो हमें एम्प्लॉयमेंट देने वाला बनना पड़ेगा। क्योंकि जॉब तो लिमिटेड है ना, जॉब लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं हो सकती कभी भी। बट अगर आप जॉब क्रिएटर बन पाते हैं, आप लोगों को रोजगार दे पाते हैं, तब आप एक्चुअली देश को विकासशील से विकसित की तरफ ले जाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दे पाएंगे, है ना। और अगर हम बात भी कर रहे हैं आज की डेट में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि 2047 तक हम एक विकसित देश होंगे। और आज क्या चल रहा है? 2024। तो 2024 से 2047 कितने साल हो गए? करीब 23 ईयर्स। और अभी आप लोगों की एज कितनी है? आपकी भी करीब इतनी ही है ना, 20, 21, 22, 23 के आसपास ही आप होगे। तो ये जो समय है देश को विकासशील से विकसित बनाने का, इसमें हमारी आपकी भागीदारी होगी, है कि नहीं? आप जब कुछ बड़ा करोगे तभी विकसित हो पाएगा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। राइट। तो आज का ये जो सेशन है, ये टॉपिक है, ये पूरा इसी के बारे में है कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, कैसे आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो और क्या कुछ कर सकते हो। पर इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपको फटाफट मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम विवेक है, विवेक मिश्रा। मैं और मेरी वाइफ मनीषा, हम दोनों ही आज साथ में बिजनेस करते हैं। बट हमेशा से ऐसे नहीं था। शुरुआत मैंने इस बिजनेस की करी थी जब मैं अपने कॉलेज डेज में था। मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद मेरे को फॉर्चुनेट रहा कि अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ पाया और वहाँ से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। धीरे धीरे करके काम बढ़ा और 2004-06 में मैंने अपनी खुद की इनकम से अपना MBA किया। मैं बहुत ही सिंपल ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ और हमारे घर में कार नहीं थी, हमारे घर में AC नहीं था, है ना। जो कुछ भी आप एक मिडिल क्लास फैमिली में देखते हैं, जो संघर्ष वाली जिंदगी है, वो हमारे साथ थी। बट आज के समय में हम उस सब चीज़ों से बाहर आ पाए हैं अपनी खुद की मेहनत की वजह से। तो 2004-06 में मैंने अपने MBA किया। MBA करने के बाद बहुत बार ऐसा हुआ जहाँ पे मैं जब कैंपस सिलेक्शन होता ना, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता था और फिर मैं मना कर देता था। तो ऐसे ही किस्सा था। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे को कॉलेज वालों ने भेजा इंटरव्यू के लिए और मेरा सिलेक्शन हो गया। हम 4 लड़के गए थे और उसमें से मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं लौट के आया घर में, मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसे करके हैदराबाद की कंपनी है और वहाँ पे वो भेज रहे हैं 7,000 रुपये सैलरी देंगे। पुरानी बात बता रहा हूँ, 2006 में, तब 7,000 रुपये भी डिसेंट सैलरी होती थी। 7,000 रुपये सैलरी देंगे, रहने खाने का भी देंगे। तो उन्होंने कहा पागल हो गए हो क्या, हैदराबाद चले जाओगे? नहीं जाना, मना करो। क्योंकि उस टाइम पे मैं जहाँ काम कर रहा था 30 से 35,000 रुपये महीना कमा रहा था पढ़ाई के साथ। राइट। तो मम्मी ने मना कर दिया, मैंने कॉलेज में जाके मना कर दिया और मेरे को कॉलेज से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया कि उसको आगे से इंटरव्यू में नहीं भेजना। तो 4 में से अगर मैं ना गया होता तो शायद 3 में से किसी एक का हो गया होता। मेरी वजह से वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। तो खैर
कॉलेज पास आउट किया, काम कर ही रहे थे, लेकिन एक चैलेंज बहुत बड़ा हमारी सोसाइटी में आज भी है, और शायद कोई जो मेल मेंबर्स हैं हो सकता है मेरी बात से रिलेट कर सके। जब कभी भी शादी के लिए लड़की की शादी के लिए लड़का ढूंढा जाता है तो लड़के में क्या क्वालिटी देखी जाती है? जॉब करता हो, सरकारी जॉब हो तो बहुत अच्छी बात है ना। दूसरा, अगर बिजनेस करता हो, किसी कहीं पे शॉप हो, है ना, कहीं तो कुछ हो। मैं जो बिजनेस कर रहा था, ना तो मेरी कोई शॉप थी, ना मेरे पास कोई जॉब थी, पैसा आ रहा था अच्छा, है ना। तो मैंने कहा भाई कहीं जॉब वॉब कर लो तो शादी वादी कैसे होगी, ये भी एक टेंशन है। मैंने खैर MBA के बाद जॉब ढूंढी, और मेरा फर्स्ट असाइनमेंट जो रहा वो महिंद्रा जनसेट्स के साथ रहा एज अ सीनियर मैनेजर रिटेल सेल्स। मैंने काम किया वहाँ पे। उसके बाद फिर एक के बाद एक बहुत सारी कंपनीज में जॉब किया, टाटा एजी लाइफ, फिर अविवा लाइफ इंश्योरेंस। फिर लास्ट असाइनमेंट जो मेरा रहा वो प्रिंसिपल रिटायरमेंट एडवाइजर्स करके US MNC थी, जहाँ मैं एक रीजनल प्रोफाइल हैंडल कर रहा था। और 2015 में मैंने अपनी जॉब क्विट करी। इसी पूरे सफ़र के दौरान मेरी उनीशा से मैरिज हुई 2008 में, और हमारा बेबी हुआ। और बेबी के बाद ये भी जॉब कर रही थी, फुल टाइम जॉब में थी, मैं भी फुल टाइम जॉब में था। बिजनेस कहीं थोड़ा साइड लाइन चला गया था, बिकॉज जब तक आप ध्यान ना दो तो बिजनेस उतना फ्लरिश नहीं करता है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है आपको। तो बिजनेस थोड़ा साइड लाइन था, लेकिन पैसा वहाँ से फिर पग पर भी आ रहा था। इन्होंने मेरे बेटे के होने के बाद जॉब क्विट करने का डिसीजन लिया, बिकॉज जॉब और बेटा दोनों साथ साथ नहीं मैनेज हो पा रहा था। लेकिन जो काम करता रहता है ना, उसको घर में नहीं बैठा जाता है। उसको आप बोलो पूरे दिन बैठ करके घर में, तो वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होने जाता है। मैंने कहा कि भाई अपना बिजनेस है कि उस पर ध्यान देना शुरू करो। फिर उन्होंने वापस उस पर ध्यान देना शुरू किया, और 2015 में वापस से हमारा बिजनेस उस लेवल पे पहुंच गया जहाँ पे ये जो अर्निंग कर रही थी, मैं जो अर्निंग कर रहा था, तो मैं कंफर्टेबली अपनी जॉब को क्विट कर सकता। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज जब कभी भी आप बिजनेस का वर्ड सुनते हो, है ना, बिजनेस वर्ड जब कभी भी आप सुनते हो, एंटरप्रेन्योर बनने की सोचते हो, तो सबसे पहला जो चैलेंज आता है वो क्या आता है? बिजनेस का मतलब हाँ, किस चीज का रिस्क? फाइनेंशियल। हाँ, बोलो जोर से, बोलो, सही बोल रहे हो। पैसों का रिस्क, ठीक है। तो बिजनेस शुरू करना है तो मुझे क्या चाहिए? पैसा। पैसे चाहिए। और कितने पैसे चाहिए? कम से कम 1-1.5 लाख। डिपेंड करता है कि आप कौन सा बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, है ना। कई बिजनेस में लाखों लगते हैं, कई बिजनेस को शुरू करने में करोड़ों लगते हैं, और जितना पैसा आपने लगाया उतना रिस्क भी उसमें आ जाता है। तो जब कभी भी अगर आप जॉब कर रहे हैं और जॉब करने के बाद अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं खास तौर से, तो मैं क्या एडवाइस करता हूँ, बिकॉज मैं फाइनेंशियल प्लानिंग में भी रहा काफ़ी लंबे समय तक, तो मैं हर किसी को ये बोलता हूँ कि जॉब करो। जॉब बहुत ज़रूरी करना, बिकॉज जॉब से आपको कुछ एक चीज़ें बड़ी अच्छी सीखने को मिलती हैं, राइट। पहली चीज़ आपको सीखने को मिलती है जॉब से, डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन सीखने को मिलता है। और डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है? बिकॉज जैसे ही आप बिजनेस करते हो या अपना खुद का काम करते हो, आपका बॉस कौन रह जाता है? कौन होता है आपका बॉस? हाँ जी, बोलो, सही बोल रहे हो, आप खुद। ये अच्छी बात है, खराब बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात है। मैं बोलता हूँ ये उतनी ही खराब बात भी है, क्योंकि जब आप अपने खुद के बॉस होते हो, तो जब आपको ऑफिस जाना होता है तो आप सुबह 6 बजे उठते हो और 9 बजे ऑफिस के दरवाजे पे होते हो, क्योंकि आपको पता है कि 9:02 हुआ तो बॉस घड़ी दिखाएगा, या हो सकता देर हो जाए तो उस दिन की सैलरी भी मेरी जा सकती है। पर जब आप अपने खुद के बॉस होते हो तो शायद आप 9 बजे तक सोते रहते हो, जब मर्जी करते काम करते हो, जब मर्जी काम नहीं भी करते हो। और उसका रिजल्ट क्या होता है? कोई पेनल्टी नहीं देता आपको, पेनल्टी खुद मिलती है। महीने के आखिर में जो पैसा आना होता है वो आता नहीं है या कम आता है, राइट। और थोड़े दिन बाद हम बोलते हैं कि बिजनेस कराओ, बिजनेस चला नहीं, ठीक है। सो बिजनेस के लिए पहले जॉब करना भी जरूरी। तो 1 साल 2 साल 3 साल तो मैं एडवाइस करता हूँ कि जॉब कर लो, थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो, कुछ पैसे इकट्ठा कर लो, 6-8 महीने, 1-2 साल का इंतजाम कर लो कि घर चल जाए, है ना। कि 2 साल अगर या साल भर काम नहीं भी किया तो उतनी तनख्वाह तो आती रहेगी, और वो 1 साल का रिस्क आप ले सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? राइट। सो हमारे पास बहुत सारे सर्टिफिकेशन भी हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल इंडिया की तरफ से और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से। कि सर्टिफिकेशन कोर्स हम लोगों ने करा था, जहाँ पे हम लोगों को बाकायदा स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बात करने के लिए, उन लोगों को ट्रेन करने का लाइसेंस मिला हुआ है। इसी के साथ साथ हमारे पास
स्किन इन्फ्लुएंसर का भी सर्टिफिकेट। आपके में आपने इन्फ्लुएंसर सुना होगा, तो हम लोग स्किन इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, ठीक है। तो इनोवेशन की जब बात होती है तो हम लोग काफ़ी इनोवेटिव हैं इन सब मामलों में, और हम आपको ट्रेन कर सकते हैं अपनी स्किन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हमारे पास वेलनेस का भी सर्टिफिकेशन है, न्यूट्रिशन का भी सर्टिफिकेशन है। तो आपको अगर वेट कम करना है, वेट बढ़ाना है, ठीक है, तो उन सब का भी सर्टिफिकेशन। हमारे पास अपना खुद का क्लब भी चलता है, जहाँ पे हम लोगों को वेलनेस के बारे में सिखाते हैं। यूट्यूब पे हमारी प्रेजेंस है, राइट। यूट्यूब आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो अपना मोबाइल निकालिएगा हमारे हाथ में आपके, ठीक है। और उधर दक्षिणा देने का समय आ गया है, तो यूट्यूब खोलिए, विवेक एंड मनीषा मिश्रा सर्च मारिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो मैं ये सेशन फ्री में कर रहा हूँ, कॉलेज वालों से कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, आप लोगों से चार्ज ले रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी से खोलिए, जल्दी से करिए, और हो जाए तो हाथ उठा के बता दीजिए हो जाए। हाँ हाँ, विवेक एंड मनीषा मिश्रा सर्च करिएगा, हम लोग मिल जाएंगे। आपको मिल गए, ठीक है। सब्सक्राइब मार दीजिए। तो आज का मेरा टारगेट पूरा, मैंने अपना कमाई कर लिया। ब्रेड चाहिए ना? डन हो गया, मिल गया सबको, थैंक यू। सो हमने अपनी टीम का नाम टीम ट्रांसफॉर्मर्स रखा हुआ। हम मानते हैं कि लाइफ में हमें बहुत बार ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, और हर कोई ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं जो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता है। आज आप जिस भी परिस्थिति में हैं, आप और बेहतर और बेहतर और बेहतर बन सकते हैं। हर दिन इम्प्रूवमेंट आप में हो सकता है। हमारी टीम में पूरे इंडिया में करीब 12,000 से ऊपर लोग हैं, जहाँ पे लोग 8,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपए पर मंथ तक अर्निंग कर रहे हैं। हमें कैश अवार्ड्स मिल चुके हैं करीब 11,62,000 के ऊपर के, 4 करोड़ के ऊपर के गिफ्ट्स, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस नेशनल इंटरनेशनल हम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, राइट। अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग गया कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। बट अगर आपको अपना ड्रीम कैरियर चूज करने का ऑप्शन मिले, तो ये आपको आके ब्रह्मा जी प्रकट हो जाए, बोले बेटा आज तो जो बताओगे वो हम बना देंगे, आप जैसी नौकरी चाहते हो वैसी नौकरी हम आपके लिए लेकर के आ गए, आप बताओ क्या चाहिए। तो उस जॉब में आपको, उस कैरियर में आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, बताते जाओ। आपको ईश्वर आ गया, तथास्तु बोलने जा रहे हैं, अभी आप बताओ कि आपको क्या चाहिए उस कैरियर में। हाँ हाँ, जोर से बोलो। रिस्पेक्ट चाहिए, सबसे पहली चीज रिस्पेक्ट ही चाहिए। हाँ, पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए? बहुत सारा तो हर किसी के लिए डिफरेंट होता है ना भाई, बहुत सारा हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। मेरे लिए बहुत सारा मे बी करोड़ों में हो सकता है, आपके लिए बहुत सारा हो सकता है हजारों लाखों में हो सकता है, आपके लिए भी करोड़ों में है। ऐसे तो बोलो ना भाई, भगवान देखो बैठा था आपको बोलने के लिए, तो आप बताओ क्या क्या चाहिए। तो इनकम कैसे चाहिए, लिमिटेड या अनलिमिटेड? सबको अनलिमिटेड चाहिए, ठीक है। और रिस्पेक्ट भी चाहिए खूब सारी। और क्या चाहिए? हाँ, पैसिव इनकम हो, ओके। और आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर हो, बॉस आके नहीं बोले आपको जो मर्जी वैसे आप प्लान कर सको, काम कर सको, पूरा फ्री हैंड हो, है ना। कोई आइडिया आप लेकर गए, बॉस ये ना बोले कि नहीं ये सही नहीं लग रहा है, बोले हाँ ठीक यही करेंगे, ऐसा है ना। और क्या चाहिए? पावर चाहिए, ठीक है, पावर मिल गई। और सोचते जाओ, बोलते जाओ। इधर से नहीं आ रही आवाज, आप लोग को नहीं चाहिए कुछ? तथास्तु बोलने जा रहे भगवान जी, अभी मांग लो, पैसा तो मिल जाएगा। और बताओ, एक अच्छी जॉब में, अच्छा जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, दर्द क्या है? क्या नहीं मिलता जॉब में आसानी से? छुट्टियां नहीं मिलती। मैं जॉब में रहा हूँ, छुट्टी नहीं मिलती, आराम नहीं मिलता। हाँ, सिर्फ 5 घंटे की जॉब होनी चाहिए, ओके गुड। और बताइए, तो आइए देखते हैं। तो अगर आपको एक चांस मिले अपनी आइडिया जॉब क्रिएट करने का, तो आपको अनलिमिटेड इनकम मिल जाए, चलेगा? कोई बॉस ना हो आपका, आप अपने हिसाब से काम कर सकें, जब चाहें तब लीव ले सकें, ठीक है। आप कहीं घूमने जाएं तो वो पैसा भी पेड हो, कंपनी दे, है ना। विदेश यात्रा यहाँ वहाँ सब कंपनी दे, और वो भी परिवार के साथ। उसके अलावा बोनस मिले, इंसेंटिव मिले आपके काम के लिए, आपको प्रमोशन मिले, और उसमें कोई बायसनेस ना हो कि वो उनकी तो हमारे बॉस से बड़ी अच्छी साठगांठ थी, तो इस साल उनका प्रमोशन हो गया और हम तो उनको
बसते नहीं थे तो हमें तो नहीं दिया, राइट। ग्रोथ फास्ट हो, काम करें और फटाफट हमें ग्रोथ मिले, और एक अच्छा वर्क कल्चर हो जहाँ पे हमें रोज ऑफिस जाने का मन करे, राइट। ये सब चाहिए। तो जो अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा उसमें आपको ये सब कुछ मिलने वाला है। बट उससे पहले आइए जानते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव इनकम क्या होती है। एक्टिव एंड पैसिव इनकम के बारे में कोई बताना चाहेगा? एनीवन? फटाफट जल्दी से, एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है? जी सर, जो जॉब करते हैं हाँ। उनको एक्टिव इनकम आती है, और जो बिजनेस करते हैं उनको पैसिव इनकम आती है। तो सिर्फ जो जॉब करते हैं क्या उनको ही एक्टिव इनकम आती है? कंफर्म? हाँ जी। और कोई प्रकाश डालना चाहेगा इस बात पे? जी राइट राइट। ओके, तो कोई एक्टिव इनकम का एग्जांपल देना चाहेंगे? जैसे उन्होंने जॉब बताया हुआ, और कैसे एग्जांपल बताइए। जैसे आप लोग कर रहे हैं, टीचिंग का प्रोफाइल है, ओके वेरी नाइस। और हाँ, सब्जी वाले उनके लिए जैसे सब्जी वाला हो सकता है ना, वो जितनी देर काम कर रहा है उतनी देर का पैसा मिल रहा, केला घर में ले आया, पैसा ना बन। रिक्शे वाला, बिल्कुल सही, थोड़ा बड़ा सोचो यार, रिक्शे वाला सब्जी वाला थोड़ा बनता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? पार्लर हो सकता है। और चलो देखते हैं फटाफट। तो एक्टिव इनकम के क्या क्या एग्जांपल्स हैं? प्रोफेशनल्स, कोई भी ऐसा प्रोफेशन हो सकता है, जैसे कि लॉयर, जितनी देर वो अपना कंसल्टेशन दे रहा है उसको पैसा मिल रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन जितने समय काम करेंगे उतने समय के लिए पैसा मिलता है, जब वो काम करेंगे तभी मिलेगा, नेक्स्ट जनरेशन को नहीं मिलता है। डॉक्टर्स, जितनी देर वो कंसल्टेशन दे रहे हैं या सर्जरी कर रहे हैं तो पैसा मिल रहा है। टीचर्स, बट ऑब्वियस, बैंक एम्प्लॉयज, या कोई भी ऐसा काम जहाँ पे जो समय आप दे रहे हो उस समय का आपको पे आउट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। जब तक आप काम किया तब पैसा मिल रहा है, काम करना बंद, पैसा आना बंद है। तो पैसिव इनकम के कुछ एग्जांपल्स आप लोग दे सकते हैं? हाँ, काला धन, काला धन पैसिव इनकम है। ट्रेडिंग हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, शेयर मार्केट हो सकता है, बिल्कुल सही। और LIC एजेंट बन सकते हैं, एक बार पॉलिसी कर दी, रेगुलर पैसा आता रहेगा। और हाँ जी, यूट्यूबर सर, यूट्यूबर, बिल्कुल सही। यूट्यूब पे है, आपने एक वीडियो डाल दिया, हमने डाल दिया यूट्यूब पे वीडियो। अभी मैं आपको बताऊं यूट्यूब में कितनी पावर है, ठीक है। हम लोग बहुत बार इसको ऐसे सोचते हैं कि कुछ ऐਵੇਂ ही है। अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो भी बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मिले, आपने देखा होगा, है ना। जो लोग इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं, जो लोग फेसबुक पे काम कर रहे हैं, यूट्यूबर्स हैं, और ये छोटी मोटी इनकम नहीं पर मजबूत इनकम कमा रहे हैं, और अच्छे अच्छे बिजनेस मैन को फेल करा हुआ है, ठीक है। बशर्ते आप उसमें उतनी डेडिकेशन के साथ, और उसमें हर जगह आपको पैशन चाहिए। कोई भी काम ऐसा नहीं जो बस आप यूं टाइम पास के लिए कर सकते हो। आप अपने पैसिव इनकम भी बनानी तो उसमें भी आपको पैशन के साथ, डेडिकेशन के साथ टाइम देना पड़ेगा। तो यूट्यूब हो सकता है, और रेंटेड प्रॉपर्टी हो सकती है। आपने पैसे कमाए, एक प्रॉपर्टी बना ली, अब उसको आपने किराए उठा दिया, आप उसके लिए रोज काम नहीं कर रहे, लेकिन किराया जो है वो हर महीने आपके पास आ रहा है, ठीक है। राइटर, आपने कोई बुक पब्लिश कर दी, एक बार पब्लिश करी, और फिर वो जब जब बिक रही है आपके पास पैसा आ रहा है, रॉयल्टी आपको मिल रही है ना। सिंगर है, गाना गा लेते हैं बहुत बढ़िया, लता मंगेशकर, है ना, बढ़िया पैसा आ रहा है। इन्वेंटर है, इनोवेशन के ऊपर आज बात हो रही है, तो आपने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करी और उसका पेटेंट ले लिया, और अभी वो जब भी किसी को अपनी टेक्नोलॉजी चाहिए होगी तो वो आपको पे करेगा, ठीक है। और क्या हो सकता है? नेटवर्क मार्केटिंग हो सकती है। और क्या हो सकता है? रियल एस्टेट हो सकता है ना। आपने मल्टीपल प्रॉपर्टीज बना ली, रेंट नहीं भी आ रहा बट वो पैसा एप्रिशिएट हो रहा है। मैंने जब MBA किया तो हमारी MBA की फाइनेंस की पहली क्लास में बताया गया कि एसेट और लायबिलिटीज, इकोनॉमिक्स वाले होंगे ना यहाँ पे, तो कौन सा ऐसा एसेट है विच नेवर डेप्रिशिएट्स? रियल एस्टेट, है ना। लैंड इज द ओनली एसेट विच नेवर डेप्रिशिएट, हमेशा एप्रिशिएट ही करेगा। बहुत रेयर कंडीशन में शायद अगर वो डेप्रिशिएट करे भी कुछ समय के लिए और फिर एप्रिशिएट करेगा, राइट। यूट्यूब चैनल है, हाँ, गोल्ड भी हो सकता है, बिल्कुल। ब्लॉगिंग हो सकती है, इंश्योरेंस एजेंट्स हो सकते हैं, ट्रेडिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो ये तमाम सारे ऐसे
ऑप्शंस हैं आपके पास हाथ में जहां से आप पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। अब दुनिया के जितने भी अमीर लोगों से आप बात करेंगे, रिचेस्ट लोगों से बात करेंगे, वो आपको कुछ एक सलाह देते हैं, हर बुक में आपको पढ़ने को मिलेगा। और वो सलाह क्या है कि आपके पास इनकम के मल्टीपल सोर्सेस होने चाहिए। अगर आप सिर्फ एक सोर्स की इनकम पे डिपेंडेंट रहेंगे तो बुरी परिस्थितियों में या कोई भी ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हो सकता है कि आपकी वो इनकम आनी बंद हो जाए। जैसे अभी कुछ साल पहले हम लोगों ने देखा कि हम लोग एक पैंडेमिक से होकर के गुजरे, जहाँ पे बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई उस दौरान, और खाने के भी वादे हो गए, है ना। और गवर्नमेंट को ये आपका राशन फ्री राशन वाली स्कीम लानी पड़ी, और भी बहुत सारी स्कीम लानी पड़ी ताकि हम एटलीस्ट उनको बचा पाए, है ना। तो अगर मेरे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, जॉब भी है और साइड लाइन पर बिजनेस भी चल रहा है और रियल एस्टेट प्रॉपर्टी भी है और मेरा एक यूट्यूब का भी चैनल है, तो सारी चीजें एक साथ थोड़े बंद हो जाएंगी। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो दूसरी तरफ से पैसा आता रहेगा, और पैसा तो जितनी जगह से आए उतना अच्छा है, ठीक है। इन सब में भी अगर मैं बात करूं, अगर आप इन सारे ऑप्शंस जो हमारे पास यहाँ पे लिस्टेड, अगर आप इसमें देखेंगे तो अगर आपको पैसिव इनकम चाहिए तो दो चीजें आपके पास होनी जरूरी है। या तो आपके पास पैसा हो, अच्छा पैसा हो, आपने कुछ समय काम किया है और आपने पैसा इकट्ठा कर लिया और आपने प्रॉपर्टी परचेज कर ली, गोल्ड परचेज कर लिया, स्टॉक शेयर परचेज कर लिया, म्यूचुअल फंड परचेज कर लिया, जहां से आपके पास पैसिव इनकम आ रही है। दूसरी चीज आपके पास या तो टैलेंट हो, ठीक, टैलेंट, गाना गा सकते हैं, कला बहुत अच्छा है, गा सकते हैं, दिमाग बहुत अच्छा है, कुछ इनोवेट कर सकते हैं, है ना, आइडियाज बहुत अच्छे अच्छे हैं, यूट्यूब पे चैनल बना करके वहां से अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो या तो पैसा हो या तो टैलेंट हो, और ये दोनों ही नहीं तो क्या करें? या अभी लग रहा है कि नहीं है तो क्या करें? राइट, सो एक बीच का ऑप्शन आपके पास निकलता है, नेटवर्क मार्केटिंग, या जिसको डायरेक्ट सेलिंग भी करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर आपको प्रकाश डालूंगा कि ये काम क्या है और इसमें आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं, और इस अर्निंग के जरिए इन तमाम सारी चीजों में से जितनी भी चीजें मैक्सिमम हो सके उनमें से आप पैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो आज मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मैंने अपनी इनकम से वो प्रॉपर्टी परचेज करी है और वहां से मेरे पास रेंटेड इनकम भी आ रही है। देख लो उसे के आगे कर लो, जो नाम है ना उसके आगे कर लो। हाँ, मैं गाना तो नहीं गा सकता, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं है अपने पास। और रियल एस्टेट प्रॉपर्टी उससे पैसा ग्रो कर रहा है। यूट्यूब का चैनल मैंने भी आप सब लोगों को सब्सक्राइब कराया। हाँ, यूट्यूब का चैनल अगर मैं इसकी बात करूं, हमारा चैनल बहुत बड़ा चैनल नहीं है, हमने स्पेसिफिक एक अपनी कंपनी स्पेसिफिक बना रखा था, और बेसिकली जब बनाया था तो ट्रेनिंग देने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी टीम है 12,000 लोगों की, सबके साथ जा करके हम 1 to 1 नहीं बात कर सकते। तो जो कुछ भी इनको हमें लगता था कि मोटी मोटी जानकारी चाहिए, वो जानकारी हम इस चैनल पे डालते जाते थे, ताकि किसी ने पूछा तो फट से उसको वीडियो को फॉरवर्ड कर सके, राइट। और हमने कुछ 4 साल पहले इस चैनल को शुरू किया था। बट इस चैनल से मैं आपको बताऊँ, मैंने अर्निंग के लिए नहीं चालू किया था, मेरा कहीं से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था कि मेरे को यहाँ से पैसे शायद मिलने लग जाएंगे। लेकिन आज के समय मेरे बेटे की फीस जो है ये चैनल देता है, ठीक है। मेरा बेटा लखनऊ में सन फ्रांसिस से पढ़ता है, जो 20,000 रुपये उसकी क्वार्टरली फीस जाती है, उतना पैसा मेरे को यहाँ से आ जाता है, तो मेरे को तो मजा आता है, ठीक है। और अगर इसको हम और काम कर सकें, या बहुत सारे लोगों को आप और सुनते होंगे कि यहाँ से पैसा आता है और जो उससे अर्न कर सकते हैं, ठीक है। ब्लॉगिंग, इंश्योरेंस नहीं, बट ट्रेडिंग, हाँ म्यूचुअल फंड्स वगैरह में कुछ इन्वेस्टमेंट्स है तो वहाँ से पैसा आता है। तो कहने का मतलब कि आप एक काम करके और कई सारी स्ट्रीम्स डेवलप कर सकते हैं साइड बाय साइड, ठीक है। अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूँ, कितने लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में जानकारी है, कुछ भी जानकारी कभी सुना हो किसी से, किसी के माध्यम से? कोई भी नहीं, स्ट्रेंज, बिकॉज हमारी टीम में वो जो हमारे 12,000 लोग हैं वो यही रोते रहते हैं कि हर कोई जुड़ा हुआ है, जिसके पास जाते हैं वो यही बोलता है कि हर कोई जुड़ा हुआ है। ये इंडस्ट्री आज पूरे विश्व में लगभग 14.43 लाख करोड़ की है ना, 14.43 लाख करोड़ की, ठीक है। और इस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो अपने इंडिया में इंश्योरेंस इंडस्ट्री से, फार्मा इंडस्ट्री से कहीं ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है ग्लोबली, ठीक है। करीब 12.54 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर इसके साथ पूरे विश्व में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। और बेसिकली इंडस्ट्री क्या होती है, इसमें काम क्या होता है, आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको आप डायरेक्टली कंज्यूमर को पहुंचाते हैं। तो आपने एक चैनल सुना होगा जहाँ पे प्रोडक्ट्स बनते हैं कंपनी में, ठीक है। कंपनी के पास बनने के बाद मे बी वो एक CNF एजेंट के पास जाते हैं, वहाँ से वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाते हैं, फिर उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए तमाम सारे होलसेलर्स के पास जाते हैं, होलसेलर्स से आप कभी कभी
मुखातिब हो जाते होंगे अपने आस पड़ोस में, और फिर उन होलसेलर्स के पास से रिटेलर्स के पास जाते हैं और तब आपके हाथ में पहुँचते हैं। तो ये जो बीच के इतने सारे लोग हैं, इनको जो पैसा जाता है इस इंडस्ट्री में, ये पैसा हम बीच को सरपास कर देते हैं, बाईपास कर देते हैं। हम बोलते हैं ये सब नहीं चाहिए, सीधे कंपनी और कंज्यूमर, ठीक है, बीच में सिर्फ एक बंदा डिस्ट्रीब्यूटर जो लोगों को सामान प्रोवाइड कराएगा, और जो कुछ भी हम इन सबको दे रहे थे वो हम उठा करके इसको दे देंगे तमाम सारे बेनिफिट्स के जरिए, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री है मोटा मोटा, जिसमें मेजर मार्केट शेयर जो है पूरे विश्व में इस इंडस्ट्री में जो सबसे ज्यादा बिकता है वो होता है वेलनेस के प्रोडक्ट्स। वेलनेस मतलब आपकी स्वास्थ्य से संबंधित चीजें, राइट। अभी मुझे आप बताओ कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने न्यूट्रिशन के ऊपर कुछ पढ़ाई करी हुई है? कुछ एक लोगों ने कैसे करी पढ़ाई, कोई न्यूट्रिशन का कोर्स किया या आपके कॉलेज में उसमें टॉपिक ही था कोई? थोड़ा फेवर है। हाँ जी, एक सब्जेक्ट है उसका पार्ट, राइट। और बाकी लोगों ने कोई नहीं। बट आपको लगता है कि न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट चीज है, पता होना चाहिए उसके बारे में। कुछ आंकड़े और हैं जो काफी डरावने हैं। हमारा भारत जो है पूरे विश्व में डायबिटीज में नंबर 1 बन चुका है। डायबिटीज की कैपिटल हम बन चुके हैं। कैंसर के पेशेंट यहाँ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां जो यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। WHO के हिसाब से हम इसमें से 75% से भी ज़्यादा बीमारियों को अवॉइड कर सकते हैं अगर हम छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस करें, ठीक है। जैसे कि अपने खान पान में सुधार करें, नींद कितनी लेना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अभी धीरे धीरे करके आप देखो हमारा कल्चर क्या होता जा रहा है। पहले मोमोज के ठेले नहीं मिलते थे, अभी मोमोज के ठेले कुछ शुरू हो गए, है ना, नूडल्स खूब मिलने शुरू हो गए। तो हमारा खान पान का जो पैटर्न है वो बदल गया, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हम लोगों को घेरने लगी, और ये धीरे धीरे हो गया, हमें पता भी नहीं लगा। अगर हमें इसके बारे में पढ़ाया गया होता बचपन से ही कि ये खाना है ये नहीं खाना, ये खाना सही है ये खाना नहीं सही है, तो शायद हम कुछ चीज़ों को अवॉइड कर सकें। तो ये गैप है, राइट। एक एंटरप्रेन्योर के लिए क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है, उस गैप को आइडेंटिफाई करना कि मार्केट में किस चीज़ की कमी है, जहाँ पे आप पिच इन करके, जहाँ पे आप जा करके बता करके और पैसे बना सकते हो, राइट। समझ में आ रही मेरी बात? तो इंडिया में इसकी बहुत बड़ी मार्केट है। वर्ल्ड वाइड 30% मार्केट शेयर है, लेकिन इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो 60% जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस होता है वो वेलनेस से होता है, बिकॉज हमारे देश में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। और सेकेंड नंबर पे जो है वो है कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर, राइट। अपनी त्वचा कैसे बेहतर करें, कैसे हम प्रेजेंटेबल बने, ठीक है, इन सब के बारे में। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें इस इंडस्ट्री को, तो ये इंडस्ट्री में वर्ल्ड वाइड इंडिया 11वें नंबर पे आता है, 11th नंबर पे, ठीक है। और नंबर 1 कंट्री कौन सा है? सेकंड कौन सा है? थर्ड चाइना, जापान, ठीक है। ये सारे कैसे देश है? विकासशील देश है, विकसित देश है? विकसित देश है, ठीक है। तो एक चीज उससे प्रूव होती है कि इस इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं तो ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो विकसित देशों ने ऑलरेडी अपना रखी है। उनके समझ में आ गई कि अगर आप यहाँ पे काम करेंगे तो आप पैसे बहुत अच्छे बना सकते हैं। और इसी वजह से आज 14 लाख करोड़ का जो बिजनेस हो रहा है उसमें मेजर शेयर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स, कोरिया, जर्मनी, चाइना और जापान का है। हम बहुत पीछे आते हैं। उस 14 लाख करोड़ में हम मुश्किल से 26,000 करोड़ का कॉन्ट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं, लाख में भी नहीं दे पा रहे। जबकि पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो हम दुनिया की इतनी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, राइट। अगेन आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, आपको दिखाना चाह रहा हूँ अपॉर्चुनिटी। एक एंटरप्रेन्योर जो है, एक बिजनेसमैन जो है, वो हर जगह क्या ढूंढता है? अपॉर्चुनिटी की मेरे पास कस्टमर कितना बड़ा है, कहाँ कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, किस किस को बता सकता हूँ। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बहुत बड़ी है, ठीक है। इंडिया में अभी कुछ दिनों पहले एक स्टडी हुई थी KPMG के जरिए, और उनकी स्टडी के हिसाब से निकल करके आया कि इंडिया में ये इंडस्ट्री आने वाले समय में 64,000 करोड़ से भी ऊपर की इंडस्ट्री होगी। और ये बहुत दूर नहीं है, 2025 की बात ही कर रहे हैं, ठीक है। आज इंडस्ट्री करीब 26,000 करोड़ की, और हम बात कर रहे हैं 64,000 करोड़ की। मतलब ये डबल से भी ज्यादा हो जाएगी आने वाले 2 सालों के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाकायदा पेपर्स में, न्यूज पेपर्स में आया था, FICCI और KPMG की जॉइंट स्टडी में। तो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। आज के समय में इसके ऊपर दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाकायदा चैप्टर भी है जहाँ पे इसके बारे में पढ़ाया जाता है, और इसके ऊपर शूलनी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने MBA प्रोग्राम भी अपना चालू किया है, मैनेजमेंट भी आप इस सब्जेक्ट से कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, कि हम सभी कहीं ना कहीं एक तरह से किसी न किसी नेटवर्क का पार्ट है। जियो सुना आप लोगों ने? जियो ने क्या किया, धीरे धीरे करके सबको फ्री में पहले मोबाइल बांटा, है ना, सिम ले लो फ्री में, फ्री में, फ्री में। आज वो फ्री में कुछ देता है आपको, जो बाजार में दूसरी कंपनी डाटा दे रही है सेम प्राइस पे ऑलमोस्ट वो भी डेटा दे रहे हैं, है ना।
कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो पहले फ्री में दिया फिर सबको, और वो क्या किया, उसने अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना लिया, सबसे बड़ा नेटवर्क बना लिया इनफैक्ट, और उस नेटवर्क के जरिए आज की डेट में वो जबरदस्त इनकम कर रहे हैं। तो चाहे रिलायंस ग्रुप हो या कोई भी और ग्रुप हो। और रिलायंस ग्रुप की अगर आप बात करो तो रिलायंस के ऊपर क्या है, अंबानी जी है। अंबानी जी की एक कंपनी है, बहुत सारी कंपनीज है ना, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस पेट्रोलियम है, जियो है ना, तमाम सारी कंपनीज हैं। हर कंपनी के अपने अपने बिजनेस हेड हैं, अपने अपने कंट्री हेड हैं। उन कंट्री हेड के नीचे अलग अलग रीजन के रीजनल हेड्स हैं, उन रीजनल हेड्स के नीचे अलग अलग एरिया मैनेजर्स हैं, उन एरिया मैनेजर्स के नीचे अलग अलग ब्रांच मैनेजर्स हैं, उन ब्रांच मैनेजर्स के नीचे अलग अलग सुपरवाइजर्स हैं, उन सुपरवाइजर्स के नीचे फिर और वर्क स्टाफ है ना। तो उनका भी क्या है, वो एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में और कुछ नहीं होता, आप अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हो, राइट। आप खुद अंबानी बन जाते हो और अपने नीचे अपनी टीम बिल्ड करते हो। समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये पूरा बिजनेस चलता है वर्ड ऑफ माउथ से। यहाँ पे आपको जो कुछ भी करना है खुद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी और नहीं मिलेगा, और यहाँ से आप अपनी खुद की काम शुरू कर सकते हो। तो कोई एज बार नहीं है, 18 साल से ऊपर हो, दैट्स इट। बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप तेजी से ग्रो कर सकते हैं, टीम बिल्ड कर सकते हैं, रिवॉर्ड रिकग्निशन हर लेवल पे मिलते हैं, मंथली इनकम आपकी परफॉर्मेंस पे मिलती है, और कोई रिटायरमेंट की एज नहीं होती। और रिटायरमेंट भी जब हम लोग इस बिजनेस में काम कर रहे हैं तो हमें समझ में आया कि रिटायरमेंट जैसा तो वर्ड ही बहुत बड़ा बेवकूफ़ी वाला वर्ड है, क्योंकि अंग्रेज में जो पकड़ा के चले गए ना, यहाँ पे हम उसी को आज तक जो है। आप फॉरेन कंट्रीज में जाके देखोगे, बाहर के देशों में, विकसित देशों में जाके देखोगे, तो वहाँ रिटायरमेंट जैसा कोई वर्ड नहीं होता। किसी को अगर आपने बूढ़ा कह दिया तो वो तो आपसे कोर्ट में केस कर दे कि आपने बूढ़ा कैसे कह दिया, क्योंकि वहाँ कोई ओल्ड नहीं होता, और जब तक जीते तब तक काम करते, राइट। क्योंकि अगर मेरा हाथ पैर चल रहा है और जितना मेरी एज हो जाएगी उतना मेरे पास एक्सपीरियंस भी तो हो जाएगा। तो जो काम एक नया बंदा शायद उसको 2 दिन लगते करने में, वो काम मैं अपने एक्सपीरियंस शायद 1 घंटे में कर दूँ, है ना। तो एक्सपीरियंस मैटर करता है, क्यों हमें उसको वेस्ट करना है। यहाँ तो 60 साल हुआ, काम खत्म, है ना, रिटायर। तो अभी क्या करेगा वो रिटायरमेंट के बाद, तो इनकम बंद, बहुत सारे उनको लगता है कि दुनिया खत्म हो गई है, और इसी वजह से यहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो है वो कम है। तो रिटायरमेंट जैसा कुछ नहीं है। आप देखो तमाम सारी फील्ड में, अभी अमिताभ बच्चन रिटायर हो रहे हैं, नहीं हो रहे ना, हम तो कमा सकते हैं, जब तक चाहे कमा सकते हैं, राइट। तो हम भी क्यों नहीं कमा सकते, जब तक चाहेंगे हम भी कमा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बस आपको काम के लिए सीखना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता, कैसे काम करना नहीं पता, तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। कोई फीस पड़ती सीखने की? नहीं, कोई फीस नहीं पड़ती, आप फ्री में सीख सकते हैं। वेबसाइट पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और इनफैक्ट सिर्फ इंडस्ट्री की बात क्यों करूँ, मैं कहता हूँ वैसे भी आपको कुछ भी आज के समय में सीखना है, हमारे पास इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी आ चुकी है ना। इंटरनेट आपको फ्री मिल रहा है ऑलमोस्ट, आपके पास यूट्यूब है और उससे आप हर कुछ सीख सकते हो। जब हमने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था, हमें कुछ नहीं पता था कि कैसे वीडियो शूट करते हैं, कैसे उसको डालते हैं, कैसे उसको आप करते हैं, उसमें मोनेटाइजेशन कैसे होता है, पैसे उससे कैसे आते हैं, ठीक है, कैमरा कैसे फेस करते हैं, लाइटिंग क्या होती है, कैमरा एंगल्स क्या होते हैं, है ना, वीडियो को एडिट कैसे करते हैं, ठीक है। अभी आप लोग देख रहे हैं जो पीछे बैनर पूरा बना हुआ है, इसको डिज़ाइन कैसे किया जाता है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें जब आप एक बिजनेस करते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है ना। और वो ज़रूरत जब पड़ेगी तो अपने आप इनोवेशन निकलता है, ये कर सकते, ये कर सकते। और उसको सीखने के लिए अच्छी बात ये कि पहले तो पैसे पड़ते थे, आज के समय में आप यूट्यूब से बहुत कुछ सीख सकते हैं, किसी भी फील्ड के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले मेरे घर पे एक ऐसा प्लग था, वो स्विच जो था वो खराब हो गया। अब आप सोचो, छोटी चीज़ अगर खराब हो गई तो आपको क्या चाहिए, फिर कोई इलेक्ट्रिशियन चाहिए ढूंढने के लिए। मुझे पता था कि इसको तो कुछ होता नहीं, जरा सा तार ही कहीं से ढीला वीला हुआ होगा, लेकिन मेरे समझ नहीं आ रहा था कि इसको निकालू कैसे। ये तो पुराने वाला मॉडल यहाँ लगा हुआ है, वो आजकल जो आते हैं ना वो फट से अंदर घुस जाते हैं। अब उसमें कहीं उसको खोलने का जुगाड़ नहीं मिल रहा था, मैंने कहा इसको खोलूँ कैसे, कुछ तो सिस्टम होता होगा। फिर याद है कि यार यूट्यूब तो है ना, यूट्यूब पे डाला कि हाउ टू ओपन अ 3-pin 5 एम्पियर स्विच, है ना, और उस पर वीडियो मिल गया, किसी इलेक्ट्रीशियन ने उसमें डाला हुआ था। उसने बोला एक पेचकस लीजिए, साइड में ऐसे छोटा सा होता है खांचा जैसा, उसमें आप अंदर डाल करके जरा सा दबाएंगे, वो खट से बाहर निकलेगा। अरे वाह, ये तो निकल आया, है ना। तो कहने मतलब अगर आपके अंदर सीखने की चाहत है
तो आपको रास्ते बहुत मिल जाएंगे, किताबें मिल जाएंगी, आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी, आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग आज की डेट में सिंपल पाथ है। एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत पैसे नहीं है, जो लाइफ में बड़ा कुछ अचीव करना चाहता है और उसको बहुत नॉलेज नहीं है, उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा कोई रास्ता नहीं हो सकता। और यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज मैं जो बोल पा रहा हूँ आप लोगों के सामने, ये मुझे इसी इंडस्ट्री से मिला है। मेरे को ट्रेनिंग की जो जॉब मिली वो इसी इंडस्ट्री से मिली, राइट। मैंने 8 साल ट्रेनिंग में जॉब करी, रीजनल प्रोफाइल तक भी गया, और मैं ऐसा नहीं था शुरू से, ठीक है। मैं बहुत शाय था, लोगों से बात करना तो दूर, अपने ही रिश्तेदारों से बात करने मुझे बड़ी शर्म आती थी। राजीव जी मेरे साथ यहाँ बैठे हुए, हम लोग सहपाठी हैं, बचपन हम लोग साथ में पढ़ते थे, और इनसे आप पूछ सकते हैं कि ये तो खैर हमारे यहाँ शुरू से लीडिंग रहे हैं ना, तो लेकिन मैं पीछे वालों में था। तो जब कभी भी हमारे होता था स्कूल में कि हर हफ्ते किसी बच्चे को एक कोई स्टोरी बोलने को बोला जाता था, और मेरा जब नंबर आने वाला था तो मैं ऐसे मुंडी छुपा लेता था। तो एक दिन इन्होंने ही हमारे गुरुजी को इशारा कर दिया कि उसको उठाओ, है ना। तो मेरा नंबर आ गया मेरा, और मैं तो बोल नहीं पाता था, और कुछ तैयार करके भी नहीं आया, कस के दुबाई हुई मेरी, इनसे हो भी गई यार, को भी फंसा दिया, है ना। तो मैं इस तरह का था। लेकिन आप सोचो कि जब मैं सीख सकता हूँ, आज मैं इतने अच्छे से बोल सकता हूँ, आप लोगों के सामने क्या 500, 1000, 5000 लोगों के सामने बोल सकता हूँ, तो आप भी सीख सकते हो। ये स्किल है, जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें स्किल है। खड़े होके बोलना बहुत कॉन्फिडेंस की बात है, और बहुत उसमें कला लगती है ना। हर कोई नहीं बोल सकता। आप शहर के सबसे अमीर इंसान को उठा के ले आइए और उसको बोलिए 1 घंटे आकर के किसी टॉपिक पे लेक्चर दे दो, उसके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, राइट। और मेरे साथ भी हुआ था, जब मैं पहली बार बोला तो मेरे भी हाथ पैर कांप रहे थे, अंधेरा हो जाता है एकदम से, क्या बोले क्या नहीं बोले, राइट। तो बढ़िया बात है कि आप सीख सकते हो, ये स्किल है जिसको आप सीख सकते हो। और ये इंडस्ट्री आने वाले 5 सालों में $1 ट्रिलियन से भी ऊपर की इंडस्ट्री होगी। $400 बिलियन से ऊपर कमीशन हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। सो आज के समय में ये कोई ट्रायल वाला बिजनेस नहीं रहेगा कि चलो आजमा के देखते हैं। इसमें लोग सक्सेस पा रहे हैं ऑलरेडी, बहुत इसमें लोग ग्रो कर रहे हैं। और ये कुछ टॉप शख्सियत जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग को पुश किया, प्रमोट किया, जो आज के डेट में बोलते हैं कि आप भी इसमें इन्वेस्ट करें, आप भी इस बिजनेस को करें। वॉरेन बफे का नाम सुना है आपने? वॉरेन बफे कौन है? वॉरेन बफे, हाँ जी, दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोगों में इनकी गिनती आती है, और ये दुनिया के सबसे रिचेस्ट इन्वेस्टर्स में तो जाने आते हैं। स्टॉक मार्केट है ना, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इसमें इनका कोई हाथ नहीं पकड़ पाया, पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 पे है। और ये इन्होंने 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करा हुआ है, परचेज करा हुआ है, राइट। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, इन्होंने भी इसके बारे में बात करी। रॉबर्ट कियोसाकी, बहुत सारी इन्होंने फेमस बुक्स लिखी हैं, राइट, जिसमें से एक बहुत पॉपुलर बुक है, मुझे मेरे बैग में होती है, तो एक बुक है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बुक को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं या एक बड़ी सोच में बदलाव लाना चाह रहे हैं, बिकॉज मेरी सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया इस किताब को पढ़ने पर। मैं पढ़ने में कोई बहुत टॉप पे नहीं था, है ना, और मेरा बुक्स पढ़ने का भी कोई खास मन नहीं था। मैं वीडियोस देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ ऑडियो बुक, लेकिन बैठ करके वो घंटे 2 घंटे कुछ पढ़ना मेरे लिए कई बार बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन ये एक ऐसी किताब है जिसको मैंने सिंगल गो में पूरी खत्म करी है, इतनी मोटी किताब है ना। और ये किताब क्या है? रिच डैड पुअर डैड। और ये क्या बताती है, एक अमीर बाप क्या करता है और एक गरीब बाप क्या करता है, ठीक है। तो इसको जरूर पढ़िएगा। इसकी मैं खास बातें आपको बताऊं तो एक अमीर बाप क्या करता है और एक गरीब बाप क्या करता है। गरीब बाप क्या बोलेगा पूरे लाइफ में, बेटा पढ़ो लिखो ताकि अच्छी नौकरी मिल जाए, और एक अमीर बाप क्या बोलेगा, पढ़ो लिखो ताकि लोगों से काम करा सको, है ना। जो गरीब होते हैं हमारी मेंटालिटी क्या होती है, काम कैसे अच्छा किया जाए ताकि मेरा बॉस खुश हो जाए। और अमीर की मेंटालिटी क्या होती है, अपनी जो लोग हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए ताकि उनसे ज्यादा काम कराया जाए, राइट। तो सोच का बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। तो ये किताब जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे, क्या करें क्या ना करें, पैसे आपके पास आए तो कैसे उस पर इन्वेस्ट करें,
हम जब कमाना शुरू करते तो बहुत सारी हम गलतियां करते, मैंने भी करी गलतियां, और मैं कई बार सोचता था कि ये जो मैं कमा रहा हूँ पैसा, ये मेरा पैसा बच क्यों नहीं रहा है, राइट। मैं आपको बताऊँ, जब मैं काम उसमें था और कॉलेज डेज की बात बताता हूँ आपको, जब मैं अपना MBA कर रहा था तो उस टाइम में 30-35 हज़ार रुपये कमा रहा था। 30-35 हज़ार रुपये वे बैक इन 2006 बहुत ज़बरदस्त इनकम होती थी, लेकिन उसके बावजूद मेरा पैसा बचता नहीं था, सब पैसा खर्च हो जाता था, राइट। और जैसे ही पैसा आता तो हम सब क्या सोचते हैं, जल्दी से गाड़ी ले लें, है ना, जल्दी से घर ले लें, कहीं घूमने चलते हैं बाहर, है ना। तो ये जो किताब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे। आज भी वॉरेन बफेट जो है बहुत सिंपल सी कार में घूमते हैं, और कुछ सिद्धांत है कि कार आपको लेनी है तो किस्तों पे मत लीजिए, पैसे जोड़िए पहले फिर परचेज करिए, राइट। एसेट एंड लाइबिलिटीज के बारे में बताते हैं कि आपको हमेशा ऐसे एसेट्स पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो इन्वेस्ट ही एसेट्स पे करना चाहिए, लाइबिलिटीज में नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप गोल्ड खरीद लोगे दैट इज एसेट, पैसा बढ़ेगा, बट आप कार खरीद लोगे जैसे ही शोरूम से बाहर लेकर के आए पैसा, और हम सब यही करते हैं, कपड़े नए नए खरीद लेंगे और ब्रांडेड कपड़े एक से एक, है ना, लेकर के ऐसी कोई वैल्यू है नहीं। तो बहुत सारी हम गलतियां करते हैं। जब हम कमाना शुरू करते हैं तो अपने शौक पूरा करना शुरू करते हैं। शौक तब पूरा करें जब आपके पास एडिशनल इनकम हो, है ना, आपका जो घर खर्च है, जो बेसिक जरूरत है, जब उसको पूरा हो जाए, और पूरा होने के बावजूद भी आपके पास इतना पैसा हो कि आप 2-4-6 महीने काट सकें, उसके बाद सरप्लस पैसा हो, उससे शौक पूरे करें। तो ये किताब आपको बहुत सारे इंसाइट्स देगी, बहुत महंगी नहीं आती है, 150-200 रुपये की आती है। इसका आपको 195 रुपीज़ में प्रिंट है, मैंने बहुत पहले ली थी, अभी बहुत भी प्राइस होगा तो 250 रुपये के ऊपर का नहीं होगा। और इसका आपको ऑनलाइन एडिशन भी मिल जाएगा, किंडल एडिशन भी मिल जाएगा, ठीक है। सो रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक्स फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क्स, एवरीवन एल्स लुक्स फॉर वर्क। दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं वो क्या ढूंढते हैं, नेटवर्क ढूंढते हैं, इससे मिलने उससे मिलने, यहाँ लिंक बना ले, वहाँ लिंक बना ले। आप लोग ये वेब सीरीज देखते हैं, हाँ, तो वेब सीरीज में भी लेटेस्ट वेब सीरीज आई है, अगर आपने इसे देखी, हसलर्स, अमेजन मिनी टीवी पे देखी किसी ने, देखिएगा, मुझे बड़ी अच्छी लगी, बिकॉज वो बिजनेस आपको कैसे बनाया जाए उसके बारे में है, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ भी शायद सीखने को मिलेंगी। तो वहाँ पे भी ये नेटवर्क के ऊपर बात होती है, कैसे आप बना सकते हैं। तो आपको बेसिकली मिलता क्या क्या है जब आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो मंथली इनकम, वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी है, डिजिटल वर्क आप कर सकते हैं, आप अपना घर, गाड़ी, बच्चों की एजुकेशन, मैरिज, इन सब के लिए एडिशनल फंड्स ले सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड क्लास लग्जरियस कॉन्फ्रेंसेज आपको मिलती हैं। हम 4 सालों में 7 कंट्रीज घूम चुके हैं, और मोस्टली हम यूरोपियन कंट्रीज में ट्रैवल किया। जो यादगार मैं अगर बोलूँ जो हमने ट्रैवल किया, उसमें से एक हमारा था क्रूज का एक्सपीरियंस, राइट। क्रूज आप लोगों ने देखा होगा, टाइटैनिक, डूबता हुआ टाइटैनिक है। सो हमारा उससे भी बड़ा शिप था, बहुत बड़ा शिप था, और एक समय पे उसमें 6000 लोग बैठ सकते थे, करीब 3000 लोग हम लोग थे, और जितने हम लोग थे उतना ही उनका स्टाफ भी था, 13 मालिक वो पूरा शिप, अंदर पूरा शहर, राइट। और हम लोग यूरोप में पूरा मेडिटेरियन सी में क्रूज कर रहे हैं, राइट। तो अपने आप में ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब किया है, वहाँ पे जाके देखिएगा, हमारा 50 ईयर्स एनिवर्सरी वाला जो क्रूज वाला कॉन्फ्रेंस है उसमें, तो ये सब भी आपको मिलता है। तो बेसिकली हमारा काम क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, हमें बेसिकली लोगों को एजुकेट करना। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था ना कि एक बहुत बड़ा गैप क्या है वेलनेस का, न्यूट्रिशन का, जहाँ पे आप लोगों को उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। आप में से किसी ने बोला था कि हमें अपना पार्लर खोलना है, ब्यूटिशियन बनना है, ठीक है। तो अगर आप ब्यूटिशियन भी बनना चाह रहे हैं तो वहाँ भी आपके पास स्कोप है लोगों को एजुकेट करने का ब्यूटी के बारे में, ठीक है। आपने प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है, सेल करना है, स्पॉन्सर करना है, आप वेलनेस कोच बन सकते हैं, स्किन इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, आपको फ्री वेडिंग सपोर्ट प्रोवाइड होता है, जितनी बड़ी आपकी टीम बनती है उतना आप इसमें अर्न करते हैं, ठीक है। तो हर कोई काम कर सकता है। स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, अगर आप में से कोई जानना चाह रहा है कि कैसे हम इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, आप लोग सभी 18 साल से ऊपर के 18+, आप में से हर कोई इस बिजनेस को शुरू कर सकता है आज से ही, ठीक है। आप अभी से आज से ही एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ठीक है। पैसा कोई इन्वेस्ट होगा नहीं, आपको क्या करना है, अपना कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ, आपके पास अभी मैं नंबर शेयर कर दे रहा हूँ, तो उस नंबर पे अपना आइडेंटिटी प्रूफ भेजिएगा, आपको हम लोग रजिस्टर कर देंगे, आपके पास आपका मेंबर आईडी पासवर्ड आ जाएगा, उससे आप काम शुरू कर सकते हैं। आपको वहाँ से ट्रेनिंग के रिसोर्सेज मिल जाएंगे वेबसाइट पे हमारी, जहाँ पे जा करके आप तमाम सारी ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं, स्किन इन्फ्लुएंसर का सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, वेलनेस का सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, और आप ऑथराइज हो जाएंगे लोगों को वेलनेस के बारे में जानकारी देने के लिए और स्किन के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए।
ठीक है। सो अपॉर्चुनिटी जो है वो हर किसी के लिए है। तो ये सभी लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अगर आप इसमें देखें तो हर एज ग्रुप, हर तबके के लोग इसमें हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि किस एज का बंदा नहीं काम कर सकता, किस बंदे नहीं काम कर सकता। ये कुछ पिक्चर्स हैं हमारी खुद की टीम से जो हमारे लोगों ने यहाँ से चीज़ें कमाई हैं, ठीक है। तो चाहे वो फ्रिज हो, टीवी हो। इस लड़की को आप देखें, धानाश्री चेन्नई से है, इसने अपनी इनकम से कार परचेज करी है, देन बाइक हो गया, लैपटॉप हो गया, चेन दी है, राइट। ये कुछ फर्दर और पिक्चर्स हैं। मनीषा बैठी में बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, 4 करोड़ से ऊपर के गिफ्ट हमारी टीम खा चुकी है, तो इस तरह के गिफ्ट्स मिलते हैं। ये कुछ और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जो हमारी टीम के लोगों ने अर्न करा है, और ये सब इन्होंने मुश्किल से 100 रुपये या 50 रुपये में इनको ऐसे टोकन प्राइस अमाउंट पे ये मिल गया। ऑब्वियसली सर्टेन टारगेट इसको अचीव करने के फ्री में तो नहीं मिलता, ठीक है। ये कुछ और पिक्चर्स हैं, जस्ट प्रूफ के लिए जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो एक्चुअली होती भी हैं कि नहीं होती हैं, और ये रियल पिक्चर्स हैं, है ना। जो आप स्टेज पे आपने तो किसी ने शुरुआत में बोला था बिजनेस इसलिए करना है क्योंकि हमें रिकग्निशन चाहिए, नाम चाहिए। तो आप सोचो आपको स्टेज पे बुलाया जाए जहाँ पे 500 लोग, 1000 लोग बैठे हुए हों, और सब लोग आपके लिए ताली मार रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस है ना, शाहरुख खान की तरह, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं जो कैश रिवॉर्ड्स मिलते हैं, ठीक है। इस तरह से ये कुछ कार्स हैं जो हम लोगों ने अपनी इनकम से परचेज करी हैं। ये हमारी दूसरी कार, इनफैक्ट चौथी कार है। और ये कुछ कॉन्फ्रेंसेस की पिक्चर्स हैं, जल्दी जल्दी आपको दिखा रहा हूँ। जयपुर, ये आपकी बैंगलोर, गोवा, घूमने का शौक किसको किसको है यहाँ पे? हैदराबाद। कितने बच्चों को घूमने का, बड़ों को भी, जिस किसको घूमने का शौक है? तो आप लोगों को एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, क्योंकि जॉब में ना तो छुट्टी मिलती है, ना घूमने के लिए अलग से पैसा मिलता है। और जो पैसा मिलता है ना, Peanuts अपना पैसा होता है, तो आप इंजॉय करके नहीं घूम सकते। मतलब घूमोगे लेकिन उस शहर के सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी में नहीं ठहरोगे। जैसे अभी इसी महीने हम लोग मुंबई जा रहे हैं, और मुंबई में जहाँ पे कंपनी ने ठहराया है वो वहाँ की वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट प्रॉपर्टी है, एयरपोर्ट के पास ITC मराठा मंदिर, है ना। ऑनलाइन सर्च मार के देख लेना। एक दिन का जो किराया है डुअल ऑक्यूपेंसी का करीब 18,000 रुपये है, राइट। जहाँ कॉन्फ्रेंस होगी, जहाँ पे हम लोग गाला नाइट इंजॉय करेंगे, वेलकम पार्टी इंजॉय करेंगे, जियो कन्वेंशन सेंटर है, जो इंडिया का सबसे कॉस्टलीस्ट कन्वेंशन सेंटर है, राइट। सो आप जब खुद से घूमते हैं, हम लोग जाते हैं, तो पर्सनल ट्रैवल भी करते हैं फैमिली के साथ, तो जब जाते हैं तो हम ठीक ठाक प्रॉपर्टीज ढूंढते हैं। जैसे 3-4 हज़ार रुपये की तो प्रॉपर्टी मिल जाए, साफ सुथरी हो, है ना। 5 स्टार में थोड़ी जा कर ठहरते हैं, लेकिन जब कंपनी ले जाती है तो आपको फुल टू एंजॉय कराती है, ठीक है। ये कुछ और पिक्चर्स हैं पेरिस की। ये पेरिस में डिज्नी वर्ल्ड की, इसका एक दिन का किराया ही करीब 10,000 रुपये से ऊपर का है, एक इंसान का, राइट। और आपका एफिल टावर में भी ऐसा ही था, कितना पे किया था, $8-10 था ऊपर का, राइट। तो मेरी तरफ से इतना ही है, थैंक यू सो मच। कितनी बड़ी देखो, जब आप क्वेश्चन नहीं पूछते हो, मैं हमेशा बोलता हूँ 2 चीज़ें होती हैं, या तो सब समझ में आ गया या कुछ भी नहीं बना। तो मैं ये कौन सा वाला मान अच्छी लगी है पूछना। तो क्वेश्चन से बढ़िया प्रेशर बहुत अच्छा बोला। कोई भी 3 चीज़ें जो आपको आज के सेशन से सीखने को मिली या अच्छी लगी वो बताना, ठीक है। और सबको बताना, ऐसा नहीं कि हाथ उठा के बताओ। सबसे पहले तुमने हाथ खड़ा किया, तुम्हें बताओ, ओके। और ठीक है, तो इधर शुरू करते, बताओ। घूमने को मिलेगा, पावर मिलेगी, डिसीजन मेकिंग मिलेगी, ठीक है। आप बताओ। मेरा लेक्चर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और घूमने को मिलेगा, ओके। अच्छा, सब ये पैसा वाले इसके अलावा तो और
और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ, घूमने को मिलेगा, ठीक है। तो जॉब से डिसिप्लिन आ जाता है, जॉब भी जरूरी है, भूल गए सब, जॉब भी करो साल 2 साल, हाँ डिसिप्लिन आता है। और डिसीजन मेकिंग आ जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि पावर बनाई कि पैसे कहाँ पे कैसे खर्च करना है, ये भी हम लोग को आइडिया हो जाएगा। कैसे क्या होता है, कैसे स्टार्ट करना है, उसके बारे में मुझे बहुत अच्छी जानकारी मिली और उससे मैं मन कैसे इंसान अच्छे से कर सकते हैं और कैसे हम अपने कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ा जोर से बोलो, उधर उसको भी सुनाई पड़ेगा। जोर से बोलना चाहिए, ठीक है। तो जोर से बोलने के लिए मैं आपको टिप देता हूँ, क्या कर सकते हो, शीशे के सामने खड़े हो, है ना, वहाँ पे प्रैक्टिस करो। नहीं तो जहाँ कहीं भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले ना, वॉलंटियर कर दो। जब एक बार आप खुद पढ़ते हो ना, तो फिर तो करना ही करना है, फिर तो नहीं पीछे हट सकते, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी आपकी कॉलेज में कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती है जहाँ पे स्टूडेंट्स को बोलने का मौका मिले, वहाँ खुद से अपना नाम दे दो। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, एक बार गलत करोगे, 2 बार गलत करोगे, आ जाएगा। जैसे बहुत टाइम लगेगा ना। हाँ जल्दी नहीं बता दो, आगे आगे बता दो एक चीज। हाँ स्किल डेवलपमेंट होता है और सर अगर बिजनेस अच्छा चल गया तो उसके साथ साथ फेम भी मिलता है। Okay, सर fame भी जैसे कि मिलता है। आपको फेम मिला है। आप बताओ बेटा, आप कुछ कह रहे थे। अपनी शौक पूरी करना है, तो शौक कब पूरी करना है? हाँ ध्यान से सुना अगर बहुत, मैंने क्या बोला था, आप अपनी शौक कब पूरी कर सकते हैं? हाँ जब पैसे ज्यादा हो, घर की जरूरतें के लिए 3, 4, 6 महीने का पैसा है, उसके बाद पैसे बच रहे हैं, सरप्लस है, तो उससे शौक पूरी कर सकते हैं। और बताइए, और कोई हाथ खड़ा करके जल्दी नहीं बताइए। हाँ जी बेटा बताओ। इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं और हम लोग how to invest, where to invest, and how to tackle problems that come in our business. हाँ जी सर। हाँ थैंक यू। तो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया और मैं इसको भी क्लैरिफाई करना चाहूँगा। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है लेकिन ये बदनाम भी है, राइट? बिकॉज हमारे भारत में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, हर जगह होते हैं, है ना? तो बहुत सारी पॉन्जी स्कीम्स चलती हैं बाजार में, जहाँ पे आपको बोला जाता है कि इतना पैसा लगाओ और इतने लोग ज्वाइन कराओ और आपके पास इतना पैसा आएगा, है ना? कहीं भी कोई भी कंपनी जब आपको इस तरह से पैसा इन्वेस्ट करने को बोले तो आप समझ जाइए कि वो कुछ गड़बड़ करेगी। या कोई भी इंसान कभी भी, ठीक है, आपको अगर ये बोलता है कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, आप बस जुड़ जाओ, उसके बाद तो आप करोड़पति बनने की गारंटी है ना? तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है। बिकॉज ईजी मनी अगर कहीं भी है किसी भी तरह से तो वो गड़बड़ है, ठीक है? कभी भी आपके पास कोई फोन आता है कि ऐसा पैसा लगाओ और ऐसा हो जाएगा रातों रात, तो गड़बड़ है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एज एन इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग एज एन इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बट इसको रेगुलेशन से भी बहुत सारे आने हैं। गवर्नमेंट अभी ऑलरेडी इस पर काम कर रही है, कुछ रेगुलेशन ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसके वजह से जैसे हमने जब ज्वाइन किया था तो रजिस्ट्रेशन के पैसे लगते हैं। अब गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी आ गई कि कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसे नहीं चार्ज कर सकती है, ठीक है? ट्रेनिंग्स आप अपनी मर्जी से बना नहीं सकते।
तो गवर्नमेंट भी इसको रेगुलराइज कर रही है, बट अभी इंडस्ट्री उतने बड़े लेवल पर नहीं है जहाँ पे प्रॉपरली पूरा उतना रेगुलेशन हो। बट हाँ, बहुत सारी चीज़ों में इन पॉन्जी स्कीम्स को टैकल किया गया है, इनको रोका गया है, और अब पहले की अपेक्षा आपको चीज़ें गड़बड़ कम दिखती हैं। बट फिर भी यहाँ आपको लोग मिलेंगे, मे बी रियल एस्टेट के बहाने, मे बी और किसी XYZ के बहाने। आपको कैसे पहचानना है कि ये जो कंपनी है वो सही है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सही है? एक एसोसिएशन है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, IDSA, राइट? तो जैसे आप जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेते हो तो क्या देखते हो? ISI मार्क देखते हो ना। ISI मार्क है तो ठीक है। बैंक में इन्वेस्ट करते हो तो आप देखते हो कि RBI से वो गवर्नड है कि नहीं है ना? म्यूचुअल फंड्स में लगाते हो तो आप देखते हो सेबी से गवर्नड है कि नहीं है। सिमिलरली अगर कोई भी कंपनी IDSA से रेगुलेटेड है, दैट मीन्स कि वो एक ऑथेंटिक कंपनी है। इंटरनेशनली उसकी प्रेजेंस हो, ऑफिस हो यहाँ पे, ये सब बेसिक चीज़ें आपको शुरुआत में देखनी चाहिए। जी, थैंक यू सो मच। और कोई कुछ पूछना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि आपको अच्छा लगा? ये जो दो बच्चों के जवाब दिए थे, एक तो आपने and एक इधर से किसी ने जवाब दिया था, किसी ने आंसर किया था ना, आपने पूछा था एक्टिव इनकम पैसिव इनकम। ये आप आ जाइए, आ जाइए। आइए बेटा, आ जाओ, आइए सर। ऐसे ही हमेशा पार्टिसिपेट किया करो, ठीक है? इससे कॉन्फिडेंस आता है। तो हम सभी से फीडबैक नहीं ले पा रहे हैं, तो आप सभी लोग कॉलेज की किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो? हाँ, सभी लोग जुड़े हुए। तो राजीव जी, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, एक मैं आप लोगों को फीडबैक के लिए फॉर्म दे दूँगा। गूगल फॉर्म का सिंपल से क्वेश्चन होंगे कि एप्लीकेशन कैसा लगा, प्रेजेंटेशन आपके इंपॉर्टेंट थी कि नहीं, आप उसको प्लीज़ फिल कर दीजिए। उससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता है, और कोई चीज़ आपको खराब मिली तो आप फिर से वहाँ पर लिख सकते हो, जिससे कॉलेज को पता लगेगा कि क्या लिखा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर किसी को नंबर चाहिए तो नंबर नोट डाउन कर सकते हैं, इनके साथ हम लोगों से कांटेक्ट करना चाहें। बट जब भी कॉल करिएगा, कॉल अवॉइड करिएगा करने को, व्हाट्सएप करिएगा, बिकॉज कई बार हम कॉल आपकी नहीं उठा पाएंगे। जब सेशन में हम अपना फोन साइलेंट में डालें तो हो सकता है कॉल। निसंदेह ये जो इम्पैक्ट लेक्चर है वो इस बात में है कि हम अपनी आइडेंटिटी को पहचानें, हम आइडेंटिटी क्राइसिस के दौर से न गुजरें। सबसे मूल बात जो है, इस तरह की जो इंस्टीट्यूशनल टॉक्स इम्पैक्ट लेक्चर्स होते हैं, उनका उद्देश्य यही होता है। मैं औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे सहयोगी, हमारे बड़े भाई प्रोफेसर शरद वैद्य सर को मैं आमंत्रित करता हूँ, जो इस कार्यक्रम के कन्वीनर भी हैं। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ औपचारिक धन्यवाद के लिए। आज के इस कार्यक्रम के लिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं सर विवेक मिश्रा, और उनके सहयोगी के रूप में उनकी धर्मपत्नी मनीषा मिश्रा है। वास्तव में आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे बच्चों को दी है, कैसे वो इंटरप्रेन्योर बने। बेसिकली अभी तक हम लोग जो बीइंग ए टीचर जो है बच्चों को जो ट्रेन करते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए या जॉब्स के लिए ज़्यादा हम जो है हमेशा ये बताते हैं, भाई ठीक है पढ़ो लिखो, अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी शादी हो जाएगी। आज आपने एक नया इंसाइट हम न केवल बच्चों को दिया, हम सबको भी दिया है। और जो आपने रिच डैड पुअर डैड की बात कही और उसका जो जिक्र लाया, बहुत अच्छी बात है कि भाई जो है जो चीज़ें रिच डैड बताता है और जो पुअर डैड बताता है। मैंने इस किताब को नहीं पढ़ा, लेकिन एक क्यूरियोसिटी और उसके साथ साथ जो है मतलब मेरे मन में भी जब ये भाव हो गया है कि मैं पढ़ूंगा जाकर के इसको। आप लोग भी पढ़िए इसको, मेरे सारे बच्चों से कहना है कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है उसको जानना जरूरी है। बहुत अच्छी बात है, एक्टिव इनकम के बारे में बताया, पैसिव इनकम के बारे में बताया, नेटवर्क मार्केटिंग बताया, और साथ ही कुछ बहुत अच्छी तस्वीरें भी हमें दिखाई कि हम कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय करें। और पैसे कमाना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, पैसे को खर्च करना भी आना चाहिए। पैसा तो बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, सभी लोग कमा रहे हैं, लेकिन जैसे मनीषा जी ने और विवेक जी उसको एंजॉय कर रहे हैं, है ना। आप सब भी खूब पहली विश तो यही है, ब्लेसिंग्स से आप लोगों को खूब पैसा कमाइए, लेकिन उसके साथ साथ लाइफ को एंजॉय भी करिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब जो गवर्नमेंट जॉब में बैठे हुए हैं लोग, ये इस पार्ट को मिस कर रहे हैं।
हम लोगों के पास बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, पैसा आ भी रहा है, अच्छा पैसा आता है, सैलरी सबकी बहुत अच्छी है, लेकिन उसको कहाँ खर्च करें, कैसे खर्च करें और कब खर्च करें, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, हाँ, कब खर्च करें। हमें छुट्टी मिली तो हमारे काउंटर पार्ट को छुट्टी नहीं है ना, या उसको छुट्टी है तो हमें नहीं छुट्टी मिल रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप एंटरप्रेन्योर होते हैं तो आप अपने बॉस खुद के होते हैं, आप चीज़ों को खुद डिसाइड करते हैं कब क्या चीज़ हमें प्लान करनी है, कैसे हमें उसमें से छुट्टियाँ निकाल लेनी है और कैसे अपनी लाइफ को इंजॉय करना है। बड़ा अच्छा बताया आपने, जो है रियली थैंक्सफुल हूँ मैं आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ सबसे पहले तो मैं इसके बाद जो है प्रिंसिपल मैम को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने जो है हम सबको हमेशा इंकरेज किया है इस टाइप के प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और इस IIC के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर पूनम वर्मा, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर राजीव यादव और हमारी जो कमेटी के मेंबर्स हैं डॉक्टर क्रांति सिंह, श्वेता भारद्वाज, डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर भानु मिश्रा, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर रोशनी, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर श्रद्धा, डॉक्टर भास्कर शर्मा, और यदि कोई जुड़ा हुआ है तो उसका भी नाम मैं तो नहीं यहाँ पर ले पाया हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सबके सहयोग से वास्तव में बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक पर यहाँ आज बातचीत हुई। तो साथ ही आप सबका भी धन्यवाद है जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि बिना आपके किसी भी कार्यक्रम की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। जब आप हैं तभी हम हैं और तभी ये सारे कार्यक्रम हैं। साथ ही इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जो भी हमारे टेक्निकल पर्सन्स हैं, मीडिया के पर्सन्स हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप दोनों हमारे स्टूडेंट्स को दोनों मैम से निवेदन है कि वो तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस संदेश को जारी रखें, लेकिन जीवन को सार्थक बनाएं और उसमें सकारात्मक सोच को विकसित करें। यही इस तरह के कार्यक्रम का मूल उद्देश्य होता है। बहुत सारी बाधाएं आएंगी, आती हैं, आप जॉब करेंगे, इच्छा होगी, नहीं इच्छा होगी, कई बार ऐसा भी काम करना पड़ेगा, पर मूल रूप से ये है कि आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के हमेशा अनवरत प्रयास करते हैं। आप सभी को बहुत धन्यवाद। अभी इसके तुरंत बाद सेकेंड लेक्चर भी है प्रोफेसर AC कुलबे साहब, उनका भी। तो हम लोग थोड़ी देर के आपसे बैठे रहेंगे और थोड़ी देर के बाद फिर दूसरा लेक्चर भी शुरू होगा। आप लोग जाइएगा नहीं, कोई यहाँ से